ہر شخص اس دنیا میں سکون سے رہنے کے لیے گھر چاہتا ہے، اور مکان زندگی میں بس ایک بار ہی بنتا ہے۔ اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ متوسط طبقے کے تنخواہ دار لوگ ہی جانتے ہیں۔ ابو کالج سے بطور پروفیسر ریٹائر ہوئے تو سوچا کہ رقم ملی ہے، کیوں نہ اس سے اپنا ذاتی گھر بنوائیں تاکہ بڑھاپا سکون سے گزرے۔ پلاٹ پہلے سے موجود تھا۔ ان دنوں میرا بڑا بھائی BSc کا طالب علم تھا۔ ابو نے تعمیر کا کام ان کو سونپ دیا اور خود نگرانی کرنے لگے۔ جن دنوں ہمارا گھر بن رہا تھا، بدقسمتی سے شہر کے حالات ٹھیک نہ تھے، اس وجہ سے مزدور نہیں مل پاتے تھے، کیونکہ ہنگاموں کے باعث ٹریفک بند ہو جاتی تھی اور محنت کش افراد اپنے کام کی جگہ پر نہ پہنچ پاتے تھے۔ یوں تعمیر کا کام کئی دن کے لیے رک جاتا تھا۔ ایک روز ابو اور بھائی مزدور لانے کو گھر سے نکلے۔ مزدوروں کی قطار میں ایک نو عمر لڑکا بھی قسمت کھلنے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ کافی کمزور لگ رہا تھا۔ بھائی نے اس کی جانب توجہ نہ دی۔ وہ دوسرے مزدوروں سے بات کرنے لگے۔ وہ خود ان کے پاس آ گیا اور درخواست کی، صاحب مجھے کام چاہیے، کم اجرت پر کام کر لوں گا۔ بھائی نے اسے غور سے دیکھا، وہ ساتھ غمزدہ بھی تھا۔ تم کمزور ہو اور یہ سخت مشقت کا کام ہے، بھلا تم کیسے کرو گے؟ جی میں کر لوں گا، کئی دنوں سے کام نہیں ملا ہے، کھانا بھی نہیں کھا سکا، اس لیے کمزور لگ رہا ہوں۔ لڑکے نے کچھ اس طرح لجا کر درخواست کی کہ بھائی کو اس پر ترس آ گیا۔ مزدوری اتنی ہی ملے گی جتنا کام کرو گے، یاد رکھنا۔ انہوں نے جتلایا، مجھے منظور ہے صاحب۔ لڑکے نے خوش ہو کر کہا، رہتے کہاں ہو؟ کوئی گھر نہیں ہے صاحب، پل کے نیچے سو جاتا ہوں۔ اس نے سیمنٹ کے بڑے سے پائپ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا اس کے اندر سوتے ہو؟ کرائے پر مکان نہیں لیا، مزدوری نہیں ملتی، کرایہ کہاں سے دوں گا؟ بھائی قاسم کو ساتھ لے آئے اور والدہ سے کہا، یہ مزدور لڑکا ہے، اسے کچھ کھانے کو دے دیجئے، فاقے سے ہے۔ والدہ اس وقت تک ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ انہوں نے ٹرے میں آلو انڈے کا سالن، 2 روٹیاں والد صاحب کو دیں کہ اس کو دے دیں۔ قاسم ناشتہ کرنے کے بعد چاقو چوبند ہو گیا۔ بھائی نے بھی ناشتہ کر لیا تو وہ قاسم کو لے کر دیگر مزدوروں کے ساتھ پلاٹ پر گئے جہاں ہمارا مکان زیر تعمیر تھا۔ سارا دن بھائی قاسم کی کارکردگی کو نوٹ کرتے رہے۔ واقعی اس نے سچ کہا تھا، وہ بے حد ضرورت مند تھا، تبھی جی توڑ کر کام کیا۔ شام کو اجرت لینے کے وقت وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب سب لوگ اجرت لے چکے تو آخر میں قاسم کی باری آئی۔ بھائی نے پوچھا، کتنی اجرت دوں؟ جو آپ کی مرضی، جو چاہے دے دیں۔ کل آؤ گے؟ اگر ہڑتال وغیرہ نہ ہو گئی تو صبح سویرے پہنچ جاؤں گا۔ اگر تم کو یہاں رہنے کو جگہ مل جائے تو بہت بہتر ہوگا، مجھے بس کا کرایہ نہیں دینا پڑے گا۔ بھائی نے والد صاحب سے مشورہ کیا اور پھر زیر تعمیر پلاٹ پر بنی چوکیدار کی کوٹری میں قاسم کو 4 پائی دے دی۔ اس دن سے یہ لڑکا کام پر لگ گیا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر ترائی کرتا اور پانی کے ڈرم بھر کر رکھتا۔ اس کے بعد جو کام بھی بھائی اور ابو کہتے وہ خوشی خوشی سر انجام دیتا تھا۔ صبح کا ناشتہ اور 2 وقت کا کھانا والد صاحب کی طرف سے تھا۔ گھر کا کھانا ملنے کی وجہ سے اس کی صحت بہتر ہو گئی اور وہ جو پہلے دن کمزور لگتا تھا اب توانا دکھائی دینے لگا۔ شروع میں کسی نے اس سے ذاتی زندگی کے بارے سوالات نہیں کیے، تاہم ایک روز جب چھٹی کا دن تھا، ابو زیر تعمیر مکان پر گئے اور قاسم کو طلب کیا۔ وہ دوڑا ہوا آیا اور بڑے ادب سے سلام کیا، پھر ابو کے بیٹھنے کے لیے کرسی اٹھا کر لے آیا۔ والد صاحب اور ظفر بھائی تو پہلے ہی اس کی کارکردگی سے خوش تھے۔ اس کی نیاز مندی نے ابو کا دل جیت لیا۔ انہوں نے قاسم سے پوچھا، میاں ہمارا مکان تو مکمل ہونے والا ہے، میری فیملی اس میں شفٹ ہو جائے گی تو پھر تم کہاں؟ پتہ نہیں صاحب، کہیں بھی چلا جاؤں گا، اس نے دکھ سے کہا۔ ایسا کہتے ہوئے وہ کھوسا گیا۔ اپنے گھر نہیں جاؤ گے کیا؟ گھر والوں سے ملنے؟ تم کو یہاں رہتے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں، گھر والے اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ کیسے؟ ابو نے حیران ہو کر سوال کیا۔ جی کچھ لوگوں نے مخالفت کی وجہ سے ہمارے گھر کو آگ لگا دی تھی، آدھی رات کو وہ سب زندہ جل گئے۔ کون تھے وہ لوگ؟ مجھے کو نہیں معلوم صاحب،
मैं दूसरे शहर में था, इसलिए बच गया। ये बड़ी दर्दनाक कहानी थी। अबू को कासिम की बात सुनकर सदमा हुआ। कासिम ने 9वीं जमात तक तालीम पाई थी, इसके बाद वो यतीम हो गया तो किसी वाकिफकार के साथ कराची आ गया और यहां मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने लगा। जब अबू ने कासिम के बारे में उम्मी से बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक माँ थी, तभी उन्होंने इस यतीम लड़के का दुख महसूस करते हुए कहा, ये 6 माह से हमारे मकान पर है, अब लोगों ने परख लिया होगा कि किस कुमाश का है, क्यों ना इसको घरेलू मुलाजिम के तौर पर रख ले। वालिद साहिब ने चौकीदार से पूछ-गुछ करके तसल्ली की तो उसने बताया कि इस लड़के का एक दूर परे का रिश्तेदार फलां बैंक में मुलाजिम है, इससे मिलकर मजीद तसल्ली कर ले। वालिद साहिब कासिम को लेकर मज़कूरा आदमी के पास गए, जो वाकई बैंक में मुलाजिम था। उसने देखते ही लड़के को गिले से लगाया और खैरियत दरियाफ्त की। वालिद साहिब को बताया कि ये अच्छे खानदान का है और उसका बाप स्कूल का उस्ताद था, और जो वाकई ये बताता है सच है। हम लोग नए मकान में शिफ्ट हो गए। वालिद साहिब ने कासिम को अपने पास घरेलू मुलाजिम के तौर पर रख लिया। अब वो घरेलू काम सरंजाम देने लगा, मसलन लान में बतौर माली काम करता और सौदा सलफ लाता। उसका ताल्लुक सवात से था। उम्मी जान इसका ख्याल रखती थी और प्यार से पेश आती थी। वो भी उनकी खिदमत करता ना थकता था। एक दिन इसने अबू से दरख्वास्त की कि वो आगे पढ़ना चाहता है। अबू ने इसको किताबें फराहम कर दें और खुद रोजाना शाम को पढ़ाने लगे। शुरू में तो वालिद साहिब ने इस मसले को कुछ ज्यादा संजीदगी से ना लिया, मगर जब कासिम की दिलचस्पी देखी तो वो इसको गैराज से घर में ले आए और पूरी तवज्जो से बरामदे में बैठकर इसे पढ़ाने लगे। हैरत अंगेज तौर पर कासिम दिल लगाकर पढ़ने लगा था। तेजी से कोर्स स्कोर कर लिया। फिर इसने मैट्रिक का प्राइवेट इम्तिहान दिया और बहुत अच्छे नंबर लिए। अब कासिम के साथ अबू का भी हौसला हुआ हो गया। उनको अंदाजा हो चुका था कि ये बहुत होनहार लड़का है। वो किसी मजदूर फैमिली से ना था, बल्कि एक अच्छे खुशहाल खानदान से था। अच्छा खून हो तो कभी धोखा नहीं देता। इसके वालिद एक स्कूल टीचर थे, जिनको अपने बच्चों को तालीम दिलवाने का बेहद शौक था। ये बात इस लड़के ने सही साबित कर दी थी। जो वक्त गुजरता जा रहा था, अबू को उसकी काबिलियत का अंदाजा होता जाता था। इस पर उनका एतमाद भी बढ़ता जाता था। एक रोज वालिद साहिब इसको लेकर एक दफ्तर में गए जहां उनका कुछ काम था। तभी एक और शख्स जो इस दफ्तर में ऑफिसर था, उसने कासिम को पहचान कर गिले लगा लिया। उसने बताया कि वाकई ये लड़का मुसीबत ज़दा है और उसके घर वाले कुछ शकी अलकल्ब अफराद के हाथों मारे जा चुके हैं। इस ऑफिसर ने बताया कि मैं कासिम के वालिद के गांव का रहने वाला हूं, लेकिन अरसा से यहां पर हूं, कभी कभार अपने गांव जाना होता था, इसीलिए इसके हालात से वाकिफ हूं, लेकिन मुझको ये मालूम नहीं था कि ये इसी शहर में है। वालिद साहिब ने इस ऑफिसर से कहा, अब आप फिक्र ना करें, मैंने पहले इसको बतौर घरेलू मुलाजिम घर में रखा, लेकिन इसका तालीमी शौक और अच्छा रिजल्ट देखते हुए अब उसे अपना बेटा बना लिया है। इंशाअल्लाह मैं उसके शौक के मुताबिक उसकी जिंदगी बना दूंगा। वालिद साहिब जूं कासिम पर मेहरबान होते गए, जफर की बदगुमानी बढ़ने लगी कि कहीं वालिद इसको वाकई अपनी औलाद जैसा मर्तबा ना अता कर दें। वो अब कासिम से चिढ़ने लगा था, क्योंकि अबू उसके बगैर खुद को अधूरा ख्याल करने लगे थे। कासिम बिन हल्क से नवाला नहीं उतरता था। रफ्ता रफ्ता जफर भाई की इससे पर ख्वाहिश इतनी बड़ी कि वो बिला वजह कासिम को झड़कने और उसकी तजलील करने लगे। एक दिन अबू घर पर न थे। जफर भाई ने उम्मी जान से कहा कि अब हमको कासिम की जरूरत नहीं, उसको चलता कर दें। 3 वक्त का खाना और तनख्वाह अलग देनी पड़ती है, फिर सर्दियों में तो गैराज में सो जाता है, गर्मियों में कहाँ सुलाएंगे इसे। वालिदा ने कहा, कासिम अच्छा इंसान है, इसका कोई नहीं है। तुम्हारे वालिद ने पनाह दी है, वो इसको पढ़ा रहे हैं, इसकी जिंदगी बन जाएगी। इस मोड़ पर निकाल दिया तो जाने बेचारे पर क्या बीते। जब वालिदा ने बात अब्बा जान पर डाल दी तो बिलाखिर जफर ने बाप के सामने भी जबान खोल दी। कहा कि घर में जवान बच्चियां हैं और अपने एक गैर लड़के को पनाह दी हुई है, आप इसको जाने का क्यों नहीं कह देते। अब इसका हमारे घर में क्या काम, सारा दिन बेकार बैठा रहता है, अखबार पढ़ता है कहीं और चला जाएगा तो अच्छे पैसे कमाएगा।
ये सुनकर वालिद साहिब की तेवरी पर बिल पड़ गए। बोले वो एक यतीम और मासूम लड़का है, फिर लायक और काबिल है, पढ़ने का शौक रखता है, जबकि ये दुनिया बुरी है। इस बुरी दुनिया में इसको यूं धक्का देना दुरुस्त नहीं। जफर को बुरा लगा कि इसके वालिद इसकी बात से ज्यादा एक गैर लड़के को अहमियत दे रहे हैं। अब वो बुरी तरह कासिम के साथ पेश आने लगा। वो सब्र व हम से जफर के बुरे सलूक को बर्दाश्त करता गया, क्योंकि इसको वालिद साहब और अब्बा जान को उसके साथ अनस हो गया था। वो जफर की कोई शिकायत अब्बा जान से न करता था। इससे पहले कि घर में कासिम की वजह से बहुत ज्यादा तलखी हो जाती, अल्लाह ताला ने दोनों पर रहम किया। यूं कि जफर भाई ने गैर मुल्की स्कॉलरशिप के लिए दरखास्त दे रखी थी। अलिफादेर से जवाब आ गया, उनको मुंतखब कर लिया गया था। ये अल्लाह का एहसान हुआ कि मेरा भाई आला तालीम के लिए यूरोप जा रहा था। इसका नाम चंद खुशकिस्मत नौजवानों की फहरिस्त में शामिल था। वो दिन भी आ गया जब जफर लंदन रवाना हो गया। उसका दाखिला एक मियारी यूनिवर्सिटी में हुआ था। अब घर में उम्मी, अबू, हम दो बहनें और कासिम रह गया। वालिद साहब ने कासिम को कॉलेज में दाखिल करा दिया था। वो बहुत मेहनत और लुक्न से पढ़ता गया। उसने एफएससी में टॉप किया और फिर उसका दाखिला इंजीनियर नग यूनिवर्सिटी में हो गया। वहां भी इसने टॉप किया और वो एक अच्छी पोस्ट पर मुलाजिम हो गया। वालिद साहब जहां अपनी मेहनत पर नाज़ा थे, वो कासिम को तरक्की की मनाजिल तय करते देखकर फूले न समाते थे। वहां वो अपने हकीकी बेटे की तरफ से फिक्रमंद रहने लगे थे, क्योंकि 2 साल के बाद जफर ने रफ्ता रफ्ता हम सब को भुलाना शुरू कर दिया। वो अब उम्मी अबू को फोन भी ना करता था। इसके साथ के तालिब इल्म पढ़कर वापस लौट आए, मगर जफर नहीं आया, बल्कि इसने लंदन में एक अंग्रेज लड़की से शादी कर ली और फिर वहां की सुकूनत इख्तियार कर ली। उसने हमसे नाता तोड़ लिया। अम्मी अबू उसके इंतजार में उम्र रसीदा से बूढ़े हो गए। वालिद साहब ने मेरी शादी कासिम से करके इसको घर दामाद बना लिया, क्योंकि उनको पीराना साली में एक मुस्तकिल सहारे की जरूरत थी। मेरी छोटी बहन मिनाहिल की भी शादी हो गई। वो अपने घर चली गई। कासिम को अबू ने बेटा बनाया तो उसने वाकई उनको बेटा बनकर दिखाया। अगर मेरे वालिद ने इसकी जिंदगी बनाई तो उसने भी इस एहसान का हक अदा किया। उम्मी अबू 70 और 80 साल के हो गए थे। वो जफर को याद करके अफसुर्दा होते थे, लेकिन कासिम ने उनकी इस तरह खिदमत की कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर कासिम ना होता तब खुदा जाने हम पर क्या बीतती। वो उनके तमाम काम करता था, उनको डॉक्टरों के पास ले जाता, दवाएं लाना और वक्त पर खुद अपने हाथ से खिलाना। अबू को व्हील चेयर पर रोजाना हुआ खौरी के लिए ले जाना और उम्मी जान को गाड़ी में जहां वो कहती थीं ले जाता था। कासिम मेरा जीवन साथी, जिसकी रगों में अच्छे खानदान का खून है, उसने मुझको भी शिकायत का मौका नहीं दिया। मेरे वालिद साहिब के पास सिवाय एक मकान के कोई और जायदाद थी और ना दौलत, कोई बैंक बैलेंस भी ना था, लेकिन कासिम ने बना किसी लालच उनको वालिदैन का दर्जा दिया। ऐसे ही जैसे भी मेरे वालिदैन ने इस बेसहारा और यतीम लड़के को बेटे का दर्जा दिया था। कहते हैं कि मुन बोले रिश्ते कम ही वफा करते हैं, लेकिन कासिम की वफा ने यह साबित कर दिया कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इंसान खुद अच्छा हो तो इससे वफा की उम्मीद रखी जा सकती है। जफर उनका सगा बेटा, जिसकी परवरिश उन्होंने दिलो जान से की, जिसको वो अपने दिल की ठंडक और आंखों का तारा समझते थे, जब पराए देश जाकर सुकूनत की खातिर वहां मर्जी से शादी कर ली तो वालिदैन और बहनों को इस तरह भला दिया जैसे वो जिंदगी के ख्वाब का कोई हिस्सा थे। अबू ने 1000 बार फोन पर राब्ते की कोशिश की और उम्मी ने बेशुमार खुतूत तहरीर किए, लेकिन जफर भाई ने जवाब ना दिया। अब भी कभी लंदन से उनका कोई दोस्त आता है तो हाल अहवाल मिल जाता है कि वो अपनी जिंदगी में खुश और मसरूर है। इसे माँ, बाप, बहनें कोई भी याद नहीं आता। इसके लिए बस उसकी बीवी और बच्चे ही कल कायनात है। खुदा उसे खुश रखे।